children, welcome to the class, online classes. Okay, how are you all? Fit and fine? Yes, very nice. Now today in this video we are going to start a poem in English 1, and the name of the poem, it's written here, From a Railway Carriage. Another part of the syllabus, another topic of the syllabus, and the poet, it's Robert Louis Stevenson. See the pronunciation, Robert Louis Stevenson. This poem, before starting the explanation, I would like to tell you what is the poem about here. The poet is assuming himself as a boy. Robert, he is assuming himself as a boy when we travel in a train. कभी आपने traveling करी होगी गाड़ी में, ट्रेन में? Yes. When we travel in a train, we are very fond of sitting next to the window, है ना? Window seat सबको बड़ी अच्छी लगती है, तो हमें वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है. And when we sit over there, and when the train moves, it starts, then what happens? The view outside the window, जो बाहर के जो scenes होते हैं, हम उनको देखते हुए जाते हैं. We throughout the journey, the whole way, we keep on looking outside the window. हमें बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है. And whatever we feel, whatever we see, that has been expressed by the poet when he himself is assuming as a boy in the poem. The views outside are very beautiful. What all he observes, what all he sees, what all he feels about that, those scenes, that has been told by the poet in this poem. In the explanation, you will get it to know that the poet has expressed his feelings by assuming himself here as a boy. And the name, once again I am telling, the name of the poet is Robert Louis Stevenson, and the name of the poem is From a Railway Carriage. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and here is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Now here the poet is describing about the experience which he is having while traveling in the train. Faster than fairies, faster than witches. जब वो ट्रेन के अंदर बैठता है, मैं बैठा हूँ और मैं बाहर देख रहा हूँ, तो सारी चीजें क्या जा रही हैं? स्पीड में जा रही हैं. फास्टर देन फेरीज, फेरीज मीन्स फेरीज जानते हैं ना, परियां जो होती हैं, उनसे भी फास्ट है. हर चीज एकदम जल्दी 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 जा रही है. फास्टर देन विचेस, विचेस क्या होती हैं? चुड़ैल जो होती हैं, उनसे भी फटाफट फटाफट सब चीजें जो होती जा रही हैं, सब निकलती जा रही हैं. ब्रिजेस एंड हाउसेस, ब्रिजेस भी आते हैं रास्ते में, घर भी देख रहा हूं मैं, सब इतनी तेजी तेजी से निकलते चले जा रहे हैं. हेजेस एंड डिचेस, हेजेस क्या होता है? द फेंस, वो होती है, बाड़ होती है जो गार्डन में हम लगाते हैं एनिमल्स को अपने घर में अंदर आने के रोकने के लिए, ठीक है, उसके आसपास जो हम सपोर्ट लगाते हैं, दैट इज नोन एज हेजेस. डिचेस क्या होता है? गड्ढे, जिनके अंदर पानी भरा होता है, गड्ढे कहते हैं उनको, डिचेस, डिच. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और ऐसे चल रही है ट्रेन, ऐसे भाग रही है, ऐसे दौड़ रही है जैसे बैटल में, लड़ाई के मैदान में जो आर्मी होती है, ट्रूप्स होता है, जो ग्रुप होता है ट्रूप्स आर्मी का, ठीक है, आर्मी मैन जो होते हैं वो बढ़ते हैं लड़ने के लिए, दौड़ रहे हैं आगे. ऐसे इतनी स्पीड में ट्रेन भाग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लड़ाई लड़ने के लिए भाग रहे हैं. ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, और क्या दिख रहा है उसको खिड़की से बाहर?
meadows, grassy fields, और उस grassy fields में क्या दिखाई दे रहे हैं? Horses and cattle. Cattle is another group of animals. Group of animals, different animals जो होते हैं cattle होते हैं. घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, cattle भी दिख रहे हैं. All of the sides of the hill and the plain. और क्या दिखाई दे रहा है? सामने से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं. Hill and the plain. Plain means the plain areas. जहाँ पे लोग रहते हैं. देखते हैं ना हम जब जाते हैं ट्रेन में बैठ के तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं, है ना? ऐसा लगता है कि ट्रेन चल रही है तो ये भी हमारे साथ साथ चल रही हैं, बट ऐसा होता नहीं है ना? इज इट? यस. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. और ऐसी लग रही है ये चीजें, ऐसे उड़ रही हैं जैसे कि बारिश की जो बूंदें एक के बाद टप 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 टपकती हैं, ऐसे जैसे कि बारिश हो रही है. उसकी जो बूंदें होती हैं एक के बाद आती है. तो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन ऐसी स्पीड से चल रही है कि सारी चीजें जो होती जा रही हैं वो पास होती जा रही हैं. एक करके एक चीज आती जा रही है. कोई चीज रुक नहीं रही है. नथिंग इज स्टॉपिंग. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसल बाय. और दोबारा से पलक झपकते ही हर 2 मिनट के बाद, 5 मिनट्स के बाद, 1 मिनट में, इन द विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकना. कहते हैं ना पलक झपकते ही तुम मेरे सामने हो गए. इन अ क्विक सेकेंड ऑफ एन आई क्लोजिंग, द मीनिंग इन द विंक ऑफ एन आई. पेंटेड स्टेशंस विसल बाय. एकदम से ही दूसरा स्टेशन आ जाता है और देखने में लगता है कि अरे अभी तो हम एक स्टेशन से स्टार्ट हुए थे एंड अगेन द नेक्स्ट स्टेशन हैज कम. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सो फास्ट, इट्स मूविंग सो फास्टली. आगे क्या होता है जब दूसरे स्टेशन से ट्रेन चलती है, स्टार्ट होती है? व्हाट इज द सीन नेक्स्ट? हियर इज द चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स. क्लैम्बर्स मीन्स क्लाइम्स विद डिफिकल्टी. स्क्रैम्बल्स मीन्स मूव क्विकली विद डिफिकल्टी यूजिंग हैंड्स. चलना, ठीक है? जैसे छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं जो छोटा बच्चा खड़ा होता है, क्लाइम्स विद डिफिकल्टी, किसी चीज को पकड़ के खड़े होना, पेड़ पे चढ़ना, क्लैम्बर्स. ये सारे वर्ड्स क्लैम्बर्स मीन्स द सेम, मीन्स क्लाइम्स विद डिफिकल्टी. क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स. एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने आप ही बिना किसी की हेल्प के, विदाउट द हेल्प ऑफ एनीवन, ही इज क्लाइंबिंग ऑन अ prickly shrub to collect the shrub. कांटेदार श्रब के ऊपर वो चढ़ रहा है कुछ कलेक्ट करने के लिए, वहां से कुछ लेने के लिए. क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स. Here is a tramp who stands and gazes. Tramp कौन होता है? A person. Tramp is a person with no home or job who travels from place to place and asks for money for other people. जो जिसके पास कोई काम नहीं होता है और जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है लोगों से पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए जिसे कहते हैं, ठीक है? Here is a tramp who stands and gazes. जो खड़ा हुआ है और देख रहा है. gazes means घूर के देख रहा है कि शायद कोई उसकी हेल्प कर दे, कोई उसको कुछ दे दे. And here is the green for stringing the daisies. और यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हुई हैं. ग्रीन का मतलब यहाँ पे लेडीज से है, जो क्या बना रही हैं? डेजीज के फूलों से गार्लैंड बना रही हैं. स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है उनको बीन सुई में डालकर माला बना रही हैं उनकी. Here is a cart run away in the road lumping along with man and load. और यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा है? एक कार्ट है. कार्ट मीन्स बुलक कार्ट जो होती है, वो सड़क पर चल रही है. रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड. लंपिंग का मतलब होता है मूविंग इन अ लंप, टुगेदर, मूविंग टुगेदर. और उस कार्ट के ऊपर क्या क्या है? आदमी है और बहुत सारा उसके ऊपर लोड है, वजन है. देखते हैं ना बैलगाड़ियां जा रही होती हैं, खूब सारा वजन होता है और साथ में एक आदमी बैठा होता है. तो ये दोनों चीजें उस कार्ट के ऊपर है और वो कार्ट रोड पर जा रही है. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. यहाँ पे और क्या दिख रहा है उसको, पोएट को? मिल. मिल जानते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, देखते हैं ना हम रास्ते में जब जाते हैं. And there is a river, नदी भी है एक. Each a glimpse and gone forever. सारी चीजें मुझे क्या दिख रही हैं? ग्लिम्स. ग्लिम्स मतलब झलक. फटाफट से मैंने उनको देखा और वो हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर चली गई, क्योंकि ट्रेन जो है वो इतनी स्पीड में जा रही है कि हर चीज का क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्लिम्स दिख रही है, एक झलक दिख रही है. मतलब मैं उसको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ और इतनी देर में वो ट्रेन जो है वो स्पीड में आगे जा रही है. So this is the poem. The poet here is expressing his views. He is sharing. See, he is sitting here and looking from outside the window and experiencing the things which are coming on the way. And the name I told you is R.L. Stevenson, Robert Louis Stevenson. Okay, students.